Hello, hello, hello. Good morning, friends. Today I have brought a new topic for you and very interesting topic, friends. Generally, people think that the topic we are going to learn, afraid of, has only one meaning. No, friends, no. One word has many meanings. Today we are going to focus different meanings of afraid of. Friends, today afraid of I am going to teach with one synonym, that is scared of, but afraid of has many more meanings. I am going to tell you step by step. The first meaning of afraid is friend भयभीत या डरा हुआ, filled with fear. दोस्तों, जब हमें कहना हो मैं किसी बात से डरता हूं, किसी चीज से डरता हूं, मुझे किसी बात का भय है, तो आपको कहना है दोस्तों आई एम अफ्रेड ऑफ. मैं जोर दे के कह रहा हूं आई एम अफ्रेड ऑफ. दोस्तों, अफ्रेड के पहले बी फैमिली का प्रयोग अनिवार्य होगा. भूल करके मत कहिएगा आई अफ्रेड ऑफ, यू अफ्रेड ऑफ, ही अफ्रेड ऑफ, शी अफ्रेड ऑफ. आई एम अफ्रेड ऑफ, you are afraid of, he is afraid of or she is afraid of. दोस्तों, be plus afraid of, afraid के पहले be लगाना जरूरी होगा. Okay? तो afraid of and scared of, they are the same. As I told you earlier, we are going to focus only one word today, afraid of. The first meaning of afraid of is भय, भीत होना, filled with fear. So let me tell you something more with picture examples. Okay, look at the picture. He is afraid of a spider. Can you see the picture, friends? He is afraid of the spider. उसे spider से, उसे मकड़ी से डर लगता है. दोस्तों, are you afraid of spider? Yes or no? If you are not afraid of a spider, let me know what are you afraid of. Please write in message box and let me read what you are afraid of. तो afraid of का पहला अर्थ होता है दोस्तों भयभीत होना, डरा हुआ होना. As this boy is afraid of a spider, he is afraid of a spider. As I said you earlier, we have one synonym. afraid of का समानार्थी भी है दोस्तों, वो है scared of. तो he is afraid of a spider, or you can say that he is scared of a spider. They have the same meaning. Let me ask you, are you afraid of anything? Are you scared of anything? Are you scared of a spider? I don't think so that you people are scared of a spider. Okay, next picture. Next picture says that, he is afraid of a dog. Afraid has one more synonym, that is he is afraid of a dog or he is scared of a dog. You can use any of them. So afraid of a dog, that boy is running and the dog is barking at him. So he is afraid of a dog. Are you afraid of a dog? Yeah, I just want to know, what are you afraid of? What is your brother afraid of? What is your sister afraid of? But let me know the first, are you afraid of English? Now, friends, there is no need to be afraid of English. English is a power you have to achieve anyhow. And with this power, you can remove all your fear, my friends. Okay? Yes, next one. The next one is, wow, she has a lizard on her hand and she is not afraid of that lizard. She is not afraid or scared of a lizard. वह छिपकली से भयभीत नहीं है. She is playing with the lizard. She is not afraid of the lizard, friend. And one more picture. She is
afraid or scared of darkness. अंधेरे से डर लगता है, कैसे जाऊं, अंधेरा है, नहीं जाता। अंधेरे से डर लगता है। कई लोग, खास करके छोटे बच्चों के साथ ये होता है, अंधेरा है, डर लग रहा है। तो सिमिलरली she is also afraid of darkness and she is also scared of darkness. You can use either afraid of or scared of. But today we are going to learn something more about afraid of, my friends. Okay, are you afraid of the dark? क्या आप डार्क से, क्या आप अंधेरे से डरते हैं? दोस्तों, अंधेरे के विषय में किसी ने क्या खूब लाइन कही है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, बट आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट फाइंडिंग द लाइट वंस अगेन। मुझे रोशनी नहीं मिल रही है फिर से, और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा बगैर रोशनी से। मुझे अंधकार से डर नहीं दोस्तों, मुझे इस बात का डर है कि फिर से रोशनी की प्राप्ति नहीं हो रही है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट फाइंडिंग द लाइट वंस अगेन। दोस्तों, आई होप दैट यू आर ऑल्सो नॉट अफ्रेड ऑफ डार्क। आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क? नो नो नो, इट इज नॉट possible for you brave people. Okay, let's go ahead. Look at the pictures. The pictures, what you can imagine looking at the pictures, friends? They are afraid of exams. Once again, I would like to ask you a question. Are you afraid of exams? No. You must have prepared yourself for the exam and you may be excited for the exam. I don't think so that you may be afraid of the exam as they are afraid of the exam. Are you afraid of exam? No. And let's go ahead. Friend, afraid has one more meaning if we use that word with afraid. Earlier we used of, afraid of plus noun, afraid of something, afraid of somebody, but this time, friends, afraid that subject plus verb. और दोस्तों, ये afraid that के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। और इसका प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ी से डिटेल में आपको लेकर के चलता हूं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला प्रयोग दोस्तों, अफ्रेड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नॉट अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड दैट। तो इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, वी यूज इट to politely say something to somebody, किसी से विनम्रता पूर्वक किसी बात को कहना। और कौन सी बात को कहना दोस्तों? That might be unpleasant or disappointing for them. वो हो सकता है कि सामने वाले के लिए unpleasant हो या disappointing हो, निराशा पैदा करने वाली बात हो दोस्तों। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति मदद की अपेक्षा लेकर के आता है और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आप मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसी पोलाइट वे का प्रयोग करके आप कहते हैं आई एम अफ्रेड दैट। बस दोस्तों, यही है कि आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए कोई जो आपका जवाब हो वो अनप्लीजेंट हो सकता है, डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, तो ऐसे जवाब को कहने के लिए हम आई एम अफ्रेड दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आइए सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। बंदा जो आपके पास मदद की अपेक्षा लेकर के आया और आप अनफॉर्चुनेटली मदद की स्थिति में नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अफ्रेड दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मुझे इस बात का एक खेद है, आप सामने वाले को कह रहे हैं विनम्रता पूर्वक कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो हम एक तरीका अपनाते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे। तो यही अफ्रेड दैट का प्रयोग होता है दोस्तों, जब आप किसी को विनम्रता पूर्वक
उस बात से मना कर देते हैं और आपका यह संदेश, आपका यह वाक्य सामने वाले के लिए अनप्लीजेंट हो या डिसअपॉइंटिंग हो तो हम आई एम अफ्रेड दैट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हम एक और सेंटेंस को आगे बढ़ें उसके पहले इसको दोहरा लेते हैं। ये बंदा जो मदद की अपेक्षा से आपके पास आया था, आप उसको हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप मदद की स्थिति में हैं ही नहीं, तो आपने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक इसको जवाब दिया। क्या दिया दोस्तों? आई एम अफ्रेड दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। दोस्तों आई एम अफ्रेड दैट को थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग के साथ फिर देखते हैं। दोस्तों अफ्रेड दैट का प्रयोग हम कब करते हैं? आई एम अफ्रेड इज अ पोलाइट वे ऑफ शोइंग दैट यू आर सॉरी अबाउट। दोस्तों यहां पर आई एम अफ्रेड का अर्थ होता है आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड का अर्थ होता है यस आई एम सॉरी। तो आई एम अफ्रेड इज अ पोलाइट वे ऑफ शोइंग दैट यू आर सॉरी अबाउट अ डिसअपॉइंटिंग नेगेटिव स्टेटमेंट जो आपने कुछ देर पहले मदद की अपेक्षा लेकर के आए हुए व्यक्ति से कहा। बिल्कुल वैसा ही आपने कुछ और परिस्थितियों को देखा और आपने सामने वाले को कहा। क्या देखा आपने? कि इन दोनों बच्चों के एक्टिविटीज को देख करके आप सॉरी फील करते हैं और कहते हैं देखिएगा मोबाइल के साथ टिक 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 खेलते हुए फेसबुक, ट्विटर और जो भी इसके और भी ऐप्स है उसी में मशगूल है, पढ़ाई में मशगूल तो है ही नहीं। तो आप इन सभी परिस्थितियों को देख करके क्या बोलते हैं दोस्तों? आई एम अफ्रेड। यहां दैट को ब्रैकेट में लिख दिया गया है, आप चाहे तो यूज करिए चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, चॉइस आपकी है दोस्तों। आई एम अफ्रेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू पास देयर एग्जाम्स। ये बच्चे अपनी परीक्षा पास नहीं करने वाले हैं, मुझे इस बात का खेद है, आई एम सॉरी। आप किसी को कह रहे हैं इनकी गतिविधियों को देख करके। आई एम अफ्रेड का अर्थ यहां पर भयभीत नहीं है दोस्तों, यहां पर इसका अर्थ है कि आप सॉरी फील कर रहे हैं उनके एक्टिविटीज को देखते हुए कि उनका रिजल्ट जो है वो अपेक्षित नहीं आएगा। आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी that they are not going to pass their exam. So afraid has different meanings, my friends. Now you are getting all the things, I am quite sure. Okay, let's go ahead. The next one, we use it when we are nervous or worried that something bad might happen. It has one more meaning, friends. Afraid means यू आर नॉट भयभीत, आप डरे हुए नहीं हैं, आप सॉरी भी नहीं हैं। उन दोनों के अलावा एक तीसरा अर्थ है दोस्तों कि आप नर्वस हैं, आप वरिड हैं, आप चिंतित हैं कि कोई गलत चीज आपके साथ हो सकता है, इसको लेकर के आप चिंतित है दोस्तों। वी यूज इट व्हेन वी आर नर्वस और वरीड दैट समथिंग बैड माइट हैपन। लुक एट द सेंटेंस, आई कुड नॉट पास द एग्जाम। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है दोस्तों? उसके लिए आपकी चिंता है, उसके लिए आप वरीड हैं और इसी को सोच के आप नर्वस हो रहे हैं क्योंकि आपने परीक्षा पास नहीं कर सके। यू कुड नॉट पास द एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड मींस आई एम नर्वस, आई एम अफ्रेड मींस I am worried, I am afraid that everybody will laugh at me. हर कोई मुझ पर हंसेगा दोस्तों। Look at the picture कि आप जो सोच रहे हैं उसको पिक्चर के माध्यम समझा रहे हैं। You could not pass the exam and you are worried about this result that everybody will laugh at you. तो यहां afraid का अर्थ होता है दोस्तों nervous और worried. Okay, next one. Aha, I am afraid that I might miss the train. यह भी वरीड है, चिंतित है, देरी से घर से निकला बंदा, ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन मिस हो जाती, और वही विचार को लेकर के वो क्या कहता है? समथिंग बैड माइट हैपन। इसके लिए वह वरीड है, चिंतित है। तो यहां अफ्रेड का अर्थ फिर से हुआ क्या? वरीड और चिंतित दोस्तों। तो आई एम अफ्रेड दैट आई माइट मिस द ट्रेन। दोस्तों अफ्रेड का जो पहला अर्थ था वो था भयभीत। तो ऐसे ही किसी बात को लेकर के फिर से उसी पुराने अर्थ में आते हैं, भयभीत तो है, डर तो है। तो आप देखिए पिक्चर से समझ में आ रहा है, लेकिन अंतर किस बात का है दोस्तों? पहले हमने देखा अफ्रेड को भयभीत के अर्थ में जब हमने उसमें ऑफ लगाया था, और अब की बार अफ्रेड टू डू समथिंग। तो यहां अफ्रेड के बाद टू लगाइएगा,
अर्थ वही है दोस्तों, भयभीत होना, जो हमने पहले अर्थ में लिया था। तो अफ्रेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है दोस्तों। एक चैप्टर आपके लिए पहले ही अपलोड किया गया है, यूज ऑफ टू, जरूर देखिएगा। और आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा में हमेशा करता हूं दोस्तों, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स प्लीज देते रहिएगा। तो अफ्रेड का अर्थ फिर से एक बार आया है भयभीत के रूप में, लेकिन अब की बार ऑफ के साथ नहीं, टू के साथ। तो अफ्रेड टू डू समथिंग, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, शी इज अफ्रेड टू आस्क अ क्वेश्चन टू हर बॉस। उनके बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही रिजिड हैं, तो उनसे प्रश्न करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। तो उनसे कोई भी प्रश्न करना होता है तो व्यक्ति के मन में भय होता है। उसी बात को यहां इस पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों। शी इज अफ्रेड टू आस्क अ क्वेश्चन टू हर बॉस। और बिल्कुल वैसा ही इस बच्चे को देखिएगा, ही इज अफ्रेड टू टेक मेडिसिन। वह मेडिसिन लेने से कतरा रहा है, उसको डर है मेडिसिन के स्वाद को लेकर के दोस्तों। तो अफ्रेड ऑफ भी भयभीत होना दिखाता है, और अफ्रेड टू डू समथिंग, अफ्रेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी भयभीत होने को दिखाता है दोस्तों। दोनों में अंतर जरूर ध्यान पे रखिएगा। एक और चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अफ्रेड फॉर हमने देखा, अफ्रेड ऑफ हमने देखा, अफ्रेड टू, अब देख रहे हैं अफ्रेड फॉर। तो अफ्रेड फॉर समथिंग, अफ्रेड फॉर समबडी मीन्स फीलिंग फियर और वरी अबाउट, किसी चीज के बारे में भयभीत होना या चिंतित होना। तो हम कई चीज के बारे में भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं। मैं अपनी रिजल्ट के बारे में चिंतित हूं, आई एम अफ्रेड फॉर माई रिजल्ट। मालूम नहीं क्या होगा, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो ऑल द कैंडिडेट्स जो इलेक्शन फाइट कर रहा होता है दोस्तों, तो दे आर अफ्रेड फॉर द रिजल्ट। तो अफ्रेड फॉर समथिंग, अफ्रेड फॉर समथिंग। तो हर किसी को अपनी जिंदगी की चिंता होती है दोस्तों। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो देखिएगा, वैसी एक आपदा की तस्वीर मैं आपके सामने ला रहा हूं, बाढ़। और इस बाढ़ से ऐसे बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को जब तक नहीं बचाया गया तब तक वे सारे के सारे जो विक्टिम्स थे वो कैसे थे? दे वर अफ्रेड फॉर, दे वर अफ्रेड फॉर समथिंग, दे वर अफ्रेड फॉर व्हाट? दे वर अफ्रेड फॉर देयर लाइव्स। दोस्तों, अपनी जिंदगी को लेकर के चिंतित थे, चिंतित थे। यहां पर मैं भयभीत से थोड़ा सा अलग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों। अफ्रेड फॉर मीन्स फीलिंग विथ फियर, लेकिन फियर के साथ साथ उनमें चिंता भी थी। तो दे वर अफ्रेड फॉर देयर लाइव्स। मैनी फ्लड विक्टिम्स वर अफ्रेड फॉर मीन्स यहां वरिड फॉर। अफ्रेड फॉर का अर्थ क्या हो रहा है यहां पर? वरिड फॉर। मैनी फ्लड विक्टिम्स वर अफ्रेड फॉर देयर लाइव्स बिफोर द आर्मी रेस्क्यूड देम। जब आर्मी ने उन्हें बचाया, सेना के लोगों ने देवदूत बनकर के उनकी प्राण रक्षा की, उसके पहले तक ये सब के सब अपनी जिंदगी के प्रति चिंतित थे, वरिड थे। दे वर वरिड फॉर देयर लाइव्स। तो वरी फॉर मीन्स अफ्रेड फॉर, अफ्रेड फॉर मीन्स वरिड भी होता है दोस्तों, भयभीत भी होता है, वरिड भी होता है। और ढेर सारी चीजों को आपने देखा। हम अफ्रेड का प्रयोग करते हैं सॉरी के लिए भी करते हैं दोस्तों। आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी। तो ढेर सारे मीनिंग आप देख रहे हैं। एक और मैं पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। ये दोनों चिंतित हैं, वरिड हैं। दे आर अफ्रेड फॉर व्हाट? मिलियन ऑफ पीपल वर अफ्रेड फॉर या वरिड फॉर। मिलियन ऑफ पीपल वर अफ्रेड, यहां अफ्रेड कर दोस्तों वरिड है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मिलियन ऑफ पीपल वर अफ्रेड फॉर देयर जॉब्स ड्यूरिंग COVID-19 एज मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम वेरियस कंपनीज वर फायर्ड। दोस्तों, COVID-19 के चलते हजारों लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे बहुत से लोग थे कि कल हमारे साथ क्या होगा, हमें भी नौकरी की आवश्यकता मत पड़ जाए। तो जो काम पे लगे हुए थे उनकी भी चिंता थी दोस्तों। दे वर ऑल्सो अफ्रेड फॉर देयर लाइव्स।
दोस्तों आपने देखा आज अफ्रेड के बारे में ढेर सारी चीजें आपने पढ़ी दोस्तों। अफ्रेड फॉर समथिंग समबडी, तो शुरुआत हमने की थी अफ्रेड ऑफ मतलब भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ नाउन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रेड दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर हमने उसी अफ्रेड को लिया, अफ्रेड ऑफ का अर्थ होता है सॉरी। फिर अफ्रेड को हमने लिया अफ्रेड फॉर। इस सारे मीनिंग्स को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, समझना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा में दोस्तों मैं अगला जब वीडियो आपके पास लेकर के आऊं उसके पहले मुझे आपके मैसेज के माध्यम से ढेर सारा प्यार लुटाइए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को पुश करिए, आप लोगों तक बातों को पहुंचाइए और बाकी भी लाभान्वित हों। यदि वाकई आप महसूस करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो दूसरों को भी आप लाभान्वित करें, उन तक इस बात को पहुंचाइए। आपकी मैसेज की प्रतीक्षा में मैं पुनः आपके सामने आऊंगा नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।